12 মে 2025 গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন, বুদ্ধ পূর্ণিমা। অর্থাৎ আজ থেকে 2648 বছর আগে এই ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হয়েছিল বিশ্ব মানবিকতার প্রতীক গৌতম বুদ্ধের। বাংলার 1347 বৈশাখে নিজের 80তম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন, যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ, যাহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরাধাম সৃষ্টির অভিপ্রায়, শুভক্ষণে পুণ্য মন্ত্রে তাহাকে স্মরণ করি, জানিলাম মনে প্রবেশী মানব লোকে 80 বছর আগে এই মহাপুরুষের পুণ্যভোগী হয়েছি আমিও। 1342-এর 4 জ্যৈষ্ঠ কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার শ্রী ধর্মরাজিক চৈত্য বিহারে বৈশাখী পূর্ণিমায় রবীন্দ্রনাথ এসে গৌতম বুদ্ধকে আখ্যা দেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে। অথচ আমরা যতটা বড়দিনে যিশুর জন্মদিনে মেতে উঠি, তার 1% আগ্রহ দেখাই না গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে। কারণ অনেক গভীরে। বেদ, আত্মা, পরমাত্মার অস্তিত্বহীনতার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে যে ব্যক্তি পৃথিবীর বহু অংশে জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, দেশের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ তা মেনে নেয় কি করে? তাই বাঙালি রামনবমী আর হনুমান জয়ন্তীতে মেতে ওঠে, অথচ যে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভূমিপুত্র বাঙালির এক নারীর টান, তাকে বাঙালি ব্রাত্য করে রেখেছে। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি? দেশে আজ হিন্দুত্ববাদী দলের অধিষ্ঠান। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে যেন তেন প্রকারে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা দেশ ছড়ানোর কাজ চলছে। হিন্দু রাষ্ট্রে কেবল উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় সংস্কৃতিরই বিস্তৃতি ঘটবে। দক্ষিণ ও পূর্বের জনসংস্কৃতিকে লুপ্ত করারও একটা প্রচেষ্টা চলছে। সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার অভাব শুধু যে মুসলিমরা ভোগ করছেন তা নন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। সংবিধানে যতই বাবা সাহেব আম্বেদকর সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলুন না কেন, হিন্দুত্ববাদীদের তা পছন্দ নয়। তাই তো হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বকলস গলায় পড়ে প্রভুভক্ত সাংবাদিকের নামে কলঙ্ক এক কুসুমাচার্য বলেন, বাংলা থেকে সেকুলাররা বেরিয়ে যান। তারপরেও প্রশাসন তার ক্রেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। অহিষ্ণু দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কি বলেন, আসুন একবার মনে করিয়ে দিই। একই বৃন্তে তুইতে কুসুম, কিসের কুসুম? একই বৃন্তে তুইতে কুসুম, কিসের কুসুম? কিসের কুসুম? লজ্জা লাগে না? গান্ডে পিণ্ডে এই মুহূর্তে আপনারা গিলবেন, গান্ডে পিণ্ডে ভারতের খাবেন আর ভারতের থালাতে ফুটো করবেন। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান যদি আপনার মনে হয় যে আপনি সেকুলার। আর জবাব চাই, বাংলা থেকে বেরিয়ে যান, কাল দেশ থেকে বেরিয়ে যান। কারণ ভারতের সংবিধান থেকে সেকুলারিজম ওয়ার্ডটাকে সরিয়ে দিতে হবে। অনেক হয়েছে। সেকুলারিজম কোনোদিন আমাদের ভারতবর্ষ ছিল না। আমাদের ভারতবর্ষ টুকরো হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর। এই নিকপুষু পানা অনেক বছর হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী শুরু করেছে এই সেকুলারিজম ওয়ার্ড। বন্ধ করুন, বদলে দিন। কিসের সেকুলারিজম? আর কতগুলো বলি হবে সেকুলারিজমের জন্য? সব সেকুলারিজম, সব ধর্ম নিরপেক্ষতার ঠেকা নিয়ে বসে রয়েছে যেন হিন্দুরা। আর অন্য কারোর সেকুলারিজম মেনটেন করার, আর অন্য কারোর সেকুলারিজম বজায় রাখার কোন ধরনের কোনো ইচ্ছা নেই। যত সেকুলারিজম হিন্দুদের ক্ষেত্রে। আর হিন্দুরা বলি হবে, হিন্দুরা কচু কাটা হবে, মুর্শিদাবাদ থেকে কাশ্মীর। আবারও বলছি, না পোষালে বেরিয়ে যান। সেকুলারদের বলছি, ভারতে না পোষালে গেট আউট। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। বুদ্ধ জয়ন্তীর প্রেক্ষিতে জানাতে দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে জঙ্গি হানা ও প্রতিবেশী দেশের ধূর্তামিতে আমরা আক্রান্ত। এই সুযোগে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ককটেলে সমাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়ে হিন্দুত্বের মোড়কে দেশকে বেঁধে ফেলার আরেক ধাপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এই সেদিনও বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমাদের দেশ যুদ্ধ নয়, বুদ্ধকে দিয়েছে। आदरणीय साथियों, 21वीं सदी का ये समय आज
विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि संति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं वैरेन वैरानी सम्मंतिद कुदाचनम अवैरेन च सम्मंति एस धम्मो सनंततो। वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। वैर अवैर से, मानवीय उदारता से खत्म होता है। बुद्ध कहते हैं भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही बुद्ध का संदेश है, यही मानवता का पथ है। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। অথচ দেশের আসল চেহারাটা কি? যে দেশের প্রধান ট্রাম্প আমাদের প্রধানের বন্ধু, সেই দেশের এক সমীক্ষা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার এদেশের প্রায় ৩০,০০০ মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছে ভারতে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম, তাই তাদের কথা মিডিয়া কিছু জানায়। কিন্তু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও যে আজ সংকটে, সে কথা প্রকাশ করে না আজকের মূল মিডিয়া। সংবিধান প্রণেতা যতদিন হিন্দুত্বের ছায়ায় ছিলেন, ততদিন হয়েছেন লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের পরও ব্রাহ্মণ্যবাদী দেশের রাজনৈতিক শক্তি তাকে সম্মান দেয়নি। একসময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন পরিবার ও বহু সংখ্যক মানুষকে নিয়ে। তাই সে সময়ের শাসক আর আজকের শাসকের চক্ষুশুল তো হবেনই তিনি।
আম্বেদকর লিখেছিলেন, ভারতের ইতিহাস বৌদ্ধ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে নশ্বর দ্বন্দ্বের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এক বৌদ্ধ রাজার হত্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, যা বৌদ্ধ রাষ্ট্র ধ্বংসের কারণ। তিনি প্রাচীন ভারতের বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, হিন্দু ভারতে মুসলিম আক্রমণ কেবল হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক প্রতীকগুলিকে ধ্বংস করেছিল, অন্যদিকে বৌদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী বিদ্রোহ জনগণের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনাকারী নীতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল। আম্বেদকর মনে করতেন, গীতা আসলে প্রতিবিপ্লবী দর্শন। ভারত ছেড়ে যদি বাংলাতেও আমরা নজর দিই, দেখব এই বাংলাতেও আদিতে কেউ হিন্দু ছিলেন না। শুনতে অবাক লাগলেও সেটাই ধ্রুব সত্য। ঐতিহাসিক ডক্টর নিহারঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব তার বড় প্রমাণ। এই বাংলায় না ছিল হিন্দু না মুসলিম, লৌকিক নাথ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন বাঙালি। এই সূত্রের সমর্থনে চলুন দেখা যাক বাংলার মনীষীরা কি বলছেন। বৌদ্ধদের প্রচারে বৈদিক যজ্ঞ লোপ পাইল, তৎপরিবর্তে বিরাট বিরাট মন্দির, জাঁকালো অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আড়ম্বর প্রিয় পুরোহিত দল এবং বর্তমানকালে ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ সেইগুলির আবির্ভাব হইল। বৌদ্ধ ধর্মই ভারতে পৌরোহিত্য ও প্রতিমা পূজা সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা। জগন্নাথ মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা এটিকে ও অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা। বাংলাদেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিম্ন স্তরে পতিত হয়। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। আমাদের পদবি থেকে অনুমান করতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষরা বৌদ্ধ ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, নতুন করে ভাবা। বৌদ্ধ ধর্ম সন্ন্যাসের ধর্ম, এরই প্রতিশোধ হিসেবে গৃহস্থ ধর্মের রামায়ণ। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড। এবার দেখব প্রাক্তন সেনাকর্মী সুরেশ্বর সরকার, যিনি ছিন্নমূল বাঙালি হিসেবে এপার বাংলায় আসেন। তিনি তার ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থের 15 পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন? সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আদি শঙ্করাচার্য তার গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বৌদ্ধ রক্তে ভারতভূমি সিক্ত করে ভারতীয় কৃষ্টি, কালচার, বৌদ্ধদের শিক্ষা কেন্দ্র, বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি ধ্বংস করে শুরু করে বিভেদপন্থী হীনচেতাদের দ্বারা ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ। ধর্মের নামে মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়, কেড়ে নেওয়া হয় অস্ত্র ধরার অধিকার। মূল নিবাসী শাসনে দেশে যে সাম্য মৈত্রীর বাতাবরণ ছিল তা সমূলে ধ্বংস করে হীনচেতা আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। ভারতে চালু হয়ে যায় মনুসংহিতার বিধান। পূর্বের 3টি বর্ণের পরিবর্তে চালু হয়ে যায় 4র্থ বর্ণ প্রথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বর্ণের বৈশ্য ছাড়া মূল নিবাসী মানুষেরা যারা বসত্ব স্বীকার করে তাদের করা হয় দাস শূদ্র। যারা মনে করেন 4র্থ বর্ণ প্রথা আগে থেকেই ছিল, তাদের বলছি, যদি আগে থেকেই থাকতো তবে বাল্মীকির পক্ষে রামায়ণ বা ব্যাসদেবের পক্ষে মহাভারত লেখা সম্ভব হতো না। মূল নিবাসী ভারতীয়দের বসুধৈব কুটুম্বকম ভাবধারার পরিবর্তে চালু হয় সবার ওপরে বামুন শ্রেষ্ঠ নীতি। এই ভারতবর্ষের পতন শুরু। সেই পতনের ট্র্যাডিশন এখনো চলছে। বঙ্গদেশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্য মৈত্রীর ভাবধারাকে টিকিয়ে রাখে। তাই বামুনেরা বাংলাকে বলতো ম্লেচ্ছের দেশ। তীর্থ পর্যটন ছাড়া কেউ বাংলায় ঢুকলে তাদের জাতিচ্যুত করত আর্যবাদীরা। সেই জন্যই সেন রাজাদের কাজ করতে আসা 5 ব্রাহ্মণ ও তাদের সহকারীরা কান্নকুব্জ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। সেন আমলের আগে বামুনেরা বাংলায় ছিল, এটা বর্তমান মনুবাদীদের মিথ্যা প্রচার। সেন আমলের আগে পর্যন্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ এবং কিছু জৈন বাস করত। জাতিচ্যুতির ভয়ে বামুনদের সঙ্গী সাথীরা বাংলায় ঢুকত না। সেন আমলে বৌদ্ধ নিধন ও বৌদ্ধদের অস্পৃশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সেন রাজারা বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও বিভেদপন্থী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু করে। এইভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সারা ভারতে তাদের বিভেদপন্থী ভাবধারা প্রচারে সচেষ্ট হয়। সুরেশবাবু আরও লিখেছেন, খ্রিস্টপূর্ব
1500 অব্দে বহিরাগত আর্যরা ভারতবর্ষে ঢোকার পরে তারা একদিকে নৃশংসভাবে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করে এবং ভারতীয় কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে শুরু করে। সেই উদ্দেশ্যে তাদের প্রথম পদক্ষেপ ভারতবাসীদের লেখা লোপাট করা। হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসকালে কিছু ভারতবাসী পারস্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরা জোরাস্ট্রিয়ান নামে এক ধর্মমত চালু করে। আর্যবাদী ঐতিহাসিকদের মতে ইউরেশিয়ান দুই শাখা, একটি ভারতবর্ষে অন্যটি পারস্যে প্রবেশ করে। আর্যরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল তারাই খ্রিস্টপূর্ব 1500 থেকে ভারতীয় সভ্যতার পত্তন করেছে। তার আগে ভারতীয় সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। তাই তাদের পক্ষে এইরূপ প্রচার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমরা যারা স্কুল কলেজে গিয়ে কিছুটা শিক্ষার আলো পেয়েছি, তারা কি এই মত মেনে নেব? একই জনগোষ্ঠীর দুই শাখা, যেটি ভারতবর্ষে ঢুকলো সেটি সুর বা দেবতা পূজারী হলো, আরেক শাখা যেটি পারস্যে ঢুকলো সেটি অসুর পূজারী হয়ে গেল এবং দেবতাদের ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিল। এটা কি মানা যায়? তাই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষেরাই যে জোরাথ্রুস্ট্রিয়ান মতের পৃষ্ঠপোষক, এটাই কি সত্যসিদ্ধ হওয়া উচিত নয়? তাছাড়া আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই তারা ছলে বলে কলে কৌশলে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করেছে। মতের প্রতিষ্ঠা করেছে স্থানীয় কৃষ্টি কালচার সভ্যতা ধ্বংস করে। তাই জোরাথ্রুস্ট্রিয়ানরা যদি বহিরাগত আর্য মানসিকতার মানুষ হতো, তবে পুরো পারস্যকে তাদের মতাবলম্বী করে ছাড়ত। তা কিন্তু তারা করেনি। তাই পারস্যে জোরাথ্রুস্ট্রিয়ানরা সংখ্যালঘু, যা প্রমাণ করে তারা আর্য মানসিকতার মানুষ নয়, আর্য কর্তৃক আক্রান্ত হরপ্পা সভ্যতার মানুষ। বাংলায় যেমন 84 জন বুদ্ধ সিদ্ধাচার্যের 24 জন নেপাল তিব্বতে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, হরপ্পা সভ্যতার আক্রান্তরাও কিছু সংখ্যক পারস্যে পালাতে পেরেছিল। তাই তারা অসুর অনুসারী। ভারতবর্ষের আদি ধর্ম দ্রাবিড়িয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক প্রভৃতি, যেগুলি প্রধানত বাস্তববাদী ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্যরা ভারতবর্ষে ঢোকার পর তাদের কল্পিত ভাববাদী মতের প্রতিষ্ঠা শুরু করে এবং খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের ধর্মপ্রচারকালে আর্যরা মাত্র চেদি মহাজন পদে তাদের মত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কম্বাজ মহাজন পথে তাদের টোল খুলতে গেলে সেখানকার মূল নিবাসীরা তাদের হটিয়ে দেয়। আর্যরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা একসময় বৌদ্ধ ধর্মে ঢুকতে শুরু করে এবং বৌদ্ধ ধর্মের মতের বাস্তববাদী ও ভাববাদীদের লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং 251 খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ বুদ্ধ সংগীতিতে বৌদ্ধ ধর্ম মহাযান ও হীনযান এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হয়ে মহাযানীরা গৌতম বুদ্ধকে ব্রাহ্মণ্য নবম অবতার বলে ঘোষণা করে এবং এর ফলে বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করা শুরু হয়ে যায়। এর আগে সমস্ত বুদ্ধ বিহার ও স্তূপ হয়েছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর। কিন্তু মহাযানীরা গৌতম বুদ্ধকে নবম অবতার ঘোষণা করার পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পার্থক্য কমে যায় এবং দিকে দিকে বুদ্ধ মূর্তি তৈরি শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ধরে নেওয়া যেতে পারে মহাযানীদের কাছ থেকে আর্যদের বিরুদ্ধে বাধা ছিল নামমাত্র। কারণ মহাযান মতের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ মতে ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ সন্তানদের দ্বারা এবং গৌতম বুদ্ধকে অবতার ঘোষণা করার পরে বুদ্ধ মত ও আর্য মত অনেকটাই কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এই অবস্থায় কেরালার আদি শঙ্করাচার্য আলোচনার নামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে এনে তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা হত্যা করতে শুরু করে। তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হয় না। শঙ্করাচার্য প্রচার করতে থাকেন তার সঙ্গে আলোচনায় বুদ্ধ ভিক্ষুরা হেরে গেছে এবং তার মতকে শ্রেষ্ঠ মত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এরপরে বাধা এলেই গুন্ডা বাহিনী দিয়ে প্রতিবাদীদের হত্যা করেছে এবং ধ্বংস করেছে বিভিন্ন বৌদ্ধ শিক্ষা নিকেতন, পুড়িয়ে ফেলেছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। আর্যবাদী প্রচার বখতিয়ার খিলজি নাকি পুড়িয়েছেন নালন্দা। এ কথা যদি সত্য মানতে হয় তবে 8ম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু 8ম শতাব্দীর হিউয়েন সাং বা ইন সিং এরপরে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউ এই দীর্ঘ সময় নালন্দায় পড়াশোনা করতে আসেননি। পায়ে হেঁটে নয়, জাহাজে আসা যাওয়ার সুযোগ পেয়েও কেন কেউ আসেননি নালন্দায়? শঙ্করাচার্যরা 4টি মঠ থেকে তাদের ধর্মপ্রচার শুরু করে। পরে মঠের সংখ্যা বাড়ানো হয়, বিভিন্ন দিকে মন্দির গড়ে ওঠে,
কিন্তু গুপ্ত যুগের মন্দিরগুলি আকারে খুবই ছোট, যা প্রমাণ করে গুপ্ত যুগে ভাববাদীদের সমর্থন কম ছিল। গৌতম বুদ্ধকে নবম অবতার মেনে নেওয়ার পর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি মহাযানপন্থীরা, কারণ তাদের ব্রাহ্মণ সন্তানদের বৌদ্ধ ধর্মে যাওয়ার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা সফল হয়ে গেছে। এরপর আস্তে আস্তে মনুবাদীরা বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা বলে প্রচার করছে। বর্তমানেও তারা সেই প্রচার থেকে বিরত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভারতবর্ষের আদি ধর্ম হয়ে গেল গুপ্ত যুগে শুরু হওয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাখা। কিন্তু তার প্রতিবাদ করবে কে? সবাই তো আজ কল্পিত ভাববাদে আপ্লুত হয়ে আছে, অথচ প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস চর্চা করলে এটা সহজেই পরিস্ফুট হবে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধময়, তার যে গৌরব সবই বুদ্ধ মতের দান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলাম, হিন্দু রাষ্ট্র গঠনে সংখ্যালঘু শুধু মুসলিম নন, বৌদ্ধরাও আক্রান্ত। হিন্দু মন্দির পরিচালন কমিটিতে নেই অন্য ধর্মের মানুষ, অথচ ওয়াকফ বোর্ডে হিন্দু রাখার কথা বলা হচ্ছে। তেমনি বিহারে বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ বিহারেও হিন্দুরা প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বৌদ্ধ সমাজ গত 3 মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। 12ই মে বুদ্ধগয়ায় হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ মানুষদের প্রতিবাদ মিছিল, অথচ প্রতিবেশী রাজ্যের এই ঘটনায় এপারের মিডিয়ারা গান্ধারী হয়ে বসে আছে। আসলে এই হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র চায় না সাধারণ মানুষ যেন বৌদ্ধ ধারা সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারে। মানুষ যেন জানতে না পারে পুরোহিত, প্রতিমা সবই বৌদ্ধদের কাছ থেকে চুরি করা। দীনেশচন্দ্র সেন তো বলেই গেছেন, চুরি হয়েছে, না হলে ঋণ স্বীকার নেই কেন? দেখুন বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কেমন অস্তিত্ব রক্ষার সংকটের আন্দোलन চলছে। भंते जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। जैसा कि हमने अभी एक दिन पहले देखा था, एक रात पहले, कि वहाँ से उठा दिया गया आप लोगों को। जी 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 उठा दिया गया रात के 1 बजे। अच्छा। क्योंकि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह से चल रहा था कि लग रहा था कि अब पूरे देश में एक जन आंदोलन बढ़ने वाला है और जल्दी ही अपने नतीजे पर पहुंचने वाला था कि ये जो 75 साल से जो 1949 में ये काला कानून बनाया गया, ये काला कानून जिसके तहत बौद्धों की विरासत में, बौद्धों की संस्कृति में, बौद्धों की सभ्यता में हिंदुओं का ग्रहण लगा। 4 हिंदुओं को इस समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि राम मंदिर की समिति में कोई मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है। जब और विष्णु मंदिर की समिति में कोई ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। ऐसे जन सैकड़ों मंदिर हैं हिंदुओं के, पर किसी भी मंदिर में, किसी भी समिति में, किसी भी ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं है। पर 1949 के एक्ट में बौद्धों की विरासत, बौद्धों की संस्कृति को हड़पने के लिए, लूटने के लिए 4 हिंदुओं को उसका सदस्य बनाया गया और 5वें हिंदू जो जिले का मजिस्ट्रेट होगा उसको चेयरमैन बनाया गया। जो 75 साल के बीच में कई बार बड़े आंदोलन चले, वही आंदोलन को गति देने के लिए अभी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी से एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन आंदोलन किया गया। उस आंदोलन को जब 16 दिन हो गए लगातार चलते हुए और आंदोलन बढ़ता चला गया, देश में जन जागरूकता फैलती चली गई, तो प्रशासन और सरकार के पेट में दर्द होने लगा। तो प्रशासन को लगने लगा कि जो मलाई, जो धन की और दान की लुटाई बुद्ध विहार में बैठकर जो पुरोहित लोग लूट रहे थे, अब वो बंद होने वाली है। तो उन्होंने रातों रात बौद्ध भिक्षुओं को 12 बजे करीब आकर और झूठा भ्रम उनके भीतर डालकर कि तुम बीमार हो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो उन्हें गाड़ियों में भरकर हॉस्पिटल में डिटेन कर दिया, बंद कर दिया गया है। क्या लगता है भंते जी कि ये जो प्रशासन है, बिहार सरकार की ओर से आप लोगों की तरफ जो ये रवैया दिखाया जा रहा है, क्या डर रही है सरकार आप लोगों से? अब आपका ये आंदोलन उग्र होता दिख रहा है उन्हें? बिल्कुल सरकार डर रही है और सरकार और डरेगी। अब सरकार के चीफ मिनिस्टर, अब मुख्यमंत्री को आना होगा, राज्यपाल को आना होगा कि उस समय के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा जो ये काला कानून बनाया गया था, अब के वर्तमान राज्यपाल आएंगे, अब वर्तमान के मुख्यमंत्री आएंगे और इस काले कानून को निरस्त करेंगे।
क्योंकि जल्द ही पूरे देश पे आह्वान कर दिया गया है कि बौद्ध उपासक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध गया की धरती पे पहुंचने वाला है। पूरा भिक्षु संघ पहुंचने वाला है। धीरे धीरे ये आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया है। रहते यहाँ भी नीतीश कुमार को सद्बुद्धि देने आए हैं। नीतीश जी हाँ, कि सुधर जाओ न सुधर जाओ न, ये अंतिम उनका मुख्यमंत्री काल होगा। इसके बाद जनता उन्हें वोट नहीं देगी। क्योंकि मैंने अभी केजरीवाल का घर जब घेरा था और कहा था कि केजरीवाल अब वापस आने वाले नहीं, चूंकि ये धोखेबाज हैं, झूठे हैं। तो मैं ये बिहार में भी कहने आया हूँ नीतीश कुमार जी से कि अगर आपने बौद्धों को धोखा दिया, ये 1949 का जो बीटी एक्ट है, अगर इसको डिसमिस नहीं किया, बौद्धों को अधिकार नहीं दिए, तो आपका भी काम खत्म होने वाला है। दिल्ली में भाजपा आ गई, यहाँ भी भाजपा आ जाएगी। आंदोलन के साथ भीतरघात करती है तो समाज चुप होकर क्यों बैठेगा, क्यों देखेगा? ये आंदोलन तो समाज का है, सहयोग पूरा समाज कर रहा है। तो हमें सारी चीजों को देखते हुए इस आंदोलन को इसके अंतिम लक्ष्य तक जो हम लेके चले हैं कि बीटी एक्ट 1949 उसको निरस्त कराया जाए, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपसे यहां कहना चाहता हूं। जो अभी बात आपने बताई कि बाबा साहब के जो परिवार से हैं और वो एक नेशनल लेवल पर टीम बनाने की बात कर रहे हैं, भंती जी ने स्वागत किया, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये बौद्ध विहार हम आपको मुक्त करते हैं, और ये मुक्त होगा तभी हमारा ये आंदोलन जो है सफल होगा। और हम ये जब तक हमारा मुक्त नहीं होता तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दुनिया में सबसे पहला विश्व गुरु कोई हुआ तो वो तथागत बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हुए, जो 2500 साल पहले जिन्होंने कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव धरती पर क्यों आया है, कैसे आपको जीव जंतु मानव प्रकृति को बचाना है, पहला ज्ञान दुनिया में किसी ने दिया तो वो तथागत बुद्ध ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया। और इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। बुद्ध क्या थे? अंधविश्वास के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। और हमारे बुद्ध विहार में बैठ के आप पाखंड फैलाएंगे, आप जातिवाद फैलाएंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धम्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे? वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धम्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। सिर्फ ये हमारे बुद्ध विहार का मामला नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही सोच के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेदभाव करते हैं, नौकरियों में भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर गांव ग्राम में भेदभाव करते हैं। ये मुट्ठी भर मनुवादी हैं और इनसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जब कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तो हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा और बुद्ध विहार भी बनेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भारत की पहचान है, बोध गया क्या है? भारत की पहचान है, दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी पवित्रता का सवाल है। जड़ खोदा जाएगा तो हम सब शाक्य हैं, कोली है, खत्तिय हैं और नंद वंश के लोग हैं और हमारा धरती है ये। हम लोग बराबरी चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? ये बीटी एक्ट आया, अगर हमारे नेता सचेत होते तो एक कब का हट जाता। लेकिन जो भाई साहब बोल के गए हैं, हमें राजनीतिक रूप से भी सचेत होना पड़ेगा और वोट का डर दिखाएंगे तभी ये हम पर कार्रवाई करेंगे। 2000 साल से 1000 साल से जाति के नाम पर बारी बारी से SC ST OBC किसानों पर अत्याचार हो रहा है। हम चुप हैं। क्या जाटों को गोली नहीं मारी गई? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। गुर्जरों को मारी गई, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा मारा गया। SC ST OBC, कुर्मी, यादव, कुशवाहा के बच्चों का रोज अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, हमारे जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, सोनेलाल पटेल, उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया और बाकायदा धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहब के रास्ते पर चले। जो जमीन के मालिक थे, जो व्यापार के मालिक थे, जो इस देश में दवा, पढ़ाई, लिखाई करते थे, उन सबको शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। और
क्या किया? हमें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया। जो जीता वो सिकंदर, वो झूठ है। जो जीता वो सम्राट अशोक। और सोचिए 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस देश का 90% आबादी आपके आंदोलन से सहमत है, चाहे वो शाह कुशवाहा हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, एसटी हो, ओबीसी हो। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया सोया हुआ है। क्यों? उसे लगता है कि हम नहीं बताएंगे तो देश नहीं जानेगा। मैं बता रहा हूं, इस आंदोलन को लंदन से, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के धर्म के अनुयायी एकजुट हो रहे हैं। अब वो दौर गया। ये जो मोबाइल है यही क्रांति है। आपके विचार को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस त्याग को पूरी दुनिया में देखा, पढ़ा और लिखा जा रहा है कि धर्म के रास्ते पर वही चलेगा जो इंसानियत, मानवता और ज्ञान से भरा होता है। इसीलिए इसको धर्म कहा गया है। आपकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप लोग विचारवान, तेजस्वी और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इसलिए अपने आप के लिए ताली बजाइए। मौर्य जी, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आपको खुली चुनौती दी है। आपके पास तथ्य हैं, साबित करें। क्या आप उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं? झूठे लोगों से और तथ्यहीन अनाप शनाप बकने वालों से मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं अपना समय बेकार करूं और इनसे बात करता हूं। एक बात बताइए, मैं तथ्यों में विश्वास क्या करता हूं। शंकराचार्य जो देश के धर्म गुरु हैं वो झूठे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? अब वही शंकराचार्य ने कभी 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ बद्रीनाथ को, बौद्ध मठ केदारनाथ को अगर विष्णु मंदिर में परिवर्तित कराया था, वो कितने सच होंगे? अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं मौर्य जी। कुछ तथ्य दूसरी तरफ से आए, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये फैक्ट है हमारे पास, वो भी आपको जानना चाहिए। बद्रीनाथ का जिक्र महाभारत में हुआ, स्कंद पुराण में हुआ, विष्णु पुराण में हुआ। स्कंद पुराण में इस धाम को मुक्ति पद कहा गया, द्वापर युग में इसे मणिभद्र आश्रम कहा गया, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम से जाना गया। और आप कहते हैं वहां पर बौद्ध मठ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी आपको पुस्तकों का जिक्र किया, ये सब ज्यादातर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। एक चीज और को मैं आपको दूं, देवनागरी लिपि, महाभारत 6वीं शताब्दी के बाद मैं आपको बता रहा हूं ना, देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी में हुआ। देवनागरी लिपि संस्कृत। बात बताइए, महाभारत, आप एक मिनट, देवनागरी लिपि ये क्लैरिटी चाहिए मुझे। हाँ, महाभारत क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ? त्रेता युग क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि जब संस्कृत भाषा पहले थी ही नहीं, तो संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा कैसे गया? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की पैदाइश थी 6वीं के अंत और 7वीं शताब्दी में हुई है। पहले इसके पहले पाली भाषा थी। और जब पाली भाषा थी तो संस्कृत में महाभारत कब लिखा गया? आप बता दीजिए मुझे, महाभारत कब लिखा गया? जितने भी इस तरह से लिखित इनके पास साहित्य हैं, लिखित धर्म ग्रंथ था, कथित धर्म ग्रंथ है। महाभारत किसने लिखा? मैं बता रहा हूं ना, ये सब के सब 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। महाभारत किसने लिखा? मैं कह रहा हूं, महाभारत लिखने कोई औचित्य नहीं जब संस्कृत भाषा ही नहीं थी। महाभारत किसने लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें महाभारत वो भी जिसने लिखा उसको भी गलत दिखाया गया है। अरे आप मुझे बताइए ना किसने लिखा है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, महाभारत किसने लिखा है? बड़ा सिंपल सा सवाल यहां पर, ये कोई भी बच्चा बता देगा मुझे। नहीं, वो तो लिखाया गया वेदव्यास के माध्यम से लिखा गया है, कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। गणेश जी ने अगर महाभारत की बात की जाए तो गणेश जी वो बोल रहे थे और फिर लिखा जा रहा था। अब आप भी गणेश जी की बात करेंगे? भाई, आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। हम मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास नहीं करते। आप मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप शताब्दी के युग में जा रहे हैं। ईसा के 500 साल पहले। ईसा के 563 साल पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है? अलग है। सनातन धर्म था? सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही
जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एस धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर आप गजब बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना। मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश। मैं कह रहा हूं उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी गणेश को मानते थे कि नहीं, राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? अब वो किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे, लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूँ। जो है यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ चिल्लाना चालू कर दिए हैं। श्रामनेर जो है इनके साथ जो है डायरेक्टली ऊंची आवाज में बातें करना चालू कर दिए हैं। बहुत ही विकट परिस्थिति है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। संपूर्ण जो है खबर आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर जो समता सैनिक दल जो है ये आ चुका है और ये संपूर्ण परिस्थिति जो उसे नियंत्रण में रखने के चालू कर रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो उपासक जो है वो बौद्ध भिक्षु के हाथों से माइक हाथ में लेने की ये कर रहे हैं, माइक हाथ में लेने की जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। भिक्षु संघ जो यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है और जो उपासकों का जो क्रोध है वो बढ़ते ही जा रहा है और अगले कुछ पलों में क्या होगा ये हम कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। लोग जो है वीडियोस बनाने के लिए रोक रहे हैं, कहते हैं कि जो है वो गलत संदेश जा रहा है। लेकिन मुझे ये सबसे पूछना है कि यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच बाबा साहब के संविधान में हमें जो अधिकार मिला है, क्या हम अपनी बात रखने का मौका भी हमें मिल नहीं सकता? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो है वो उपासक उपासिकाएं जो वो श्रामनेर भिक्षु संघ के साथ जो है वो डायरेक्टली ज़्यादा हाथापाई हो चुकी है और बहुत ही विकट परिस्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही विकट परिस्थिति हमें यहाँ पे को देखने को मिल रही है। दोस्तों श्रामनेर भिक्षु संघ और उपासकों के बीच में जो है ये हाथापाई जो है वो डायरेक्टली चालू हो चुकी है। बौद्ध मुक्ति आंदोलन जो है एक विकट परिस्थिति में है और जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाओं के बीच में जो है ये हाथापाई जो है ये शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन विमर्श है कि ये दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जो है ये चीजें जो है ये बिगड़ रही है, संपूर्ण चीजें जो है ये बिगड़ती रही है और बुद्ध वंदना जो है ये कंटिन्यूस चालू है। बहुत ही विकट परिस्थिति हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। आंदोलन के धरना स्थल पर हमें जो है यहाँ पर जो है वो भिक्षु संघ और उपासकों के बीच में जो है डायरेक्टली हाथापाई चालू हो चुकी है। समता सैनिक दल जो है इसे पूरा नियंत्रण करने में लगा हुआ है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति यहाँ पर बन चुकी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंच चुका है, कपड़े फाड़े गए उपासकों के और बहुत ही ज्यादा जो ये परिस्थिति जो ये विकट बन चुकी है और पुलिस प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया है और उपासक को जो है ये पुलिस प्रशासन ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति हमें जो है ये आंदोलन जो ये चिरगड़ रहा है। दोस्तों दीक्षा भूमि नागपुर से शांति मार्च की शुरुआत। शांति मार्च में शामिल हुए हजारों लोग बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, इस मांग के लिए विगत 1 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के लिए पूरे देश से नहीं बल्कि दुनिया से भी सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। और नागपुर में भी इस आंदोलन के लिए शांति मार्च का भव्य आयोजन हुआ। दीक्षा भूमि से शांति मार्च का आयोजन हुआ। भिक्षु संघ के नेतृत्व में इस शांति मार्च में हजारों लोग शामिल हुए और ये शांति मार्च संविधान चौक तक पहुंचा और संविधान चौक में अब इस शांति मार्च की सभा चल रही है और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे लोग बौद्ध गया की जो विरासत है महाबोधि महाविहार, उस विरासत को बौद्धों को सौंपने के लिए तन मन धन से मार्च में शामिल हुए हैं और लगातार जो आंदोलन बौद्ध गया में चल रहा है उस आंदोलन को नागपुर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट नागपुर से हो रहा है। देखिए, अगर आपके पास मुर्गी हो जो सोने के अंडे देती है वो आप मुझे दे दोगे? तो ये जो बौद्ध गया है ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। चपरासी से लेकर सीएम तक और हो सकता है पीएम तक, यहाँ जो करोड़ों रुपया महीने का आता है ना वो सभी की पॉकेट में जाता है। क्या इम्प्रूव किया है उन्होंने वहाँ? पहली बार मैं 1997 में आया था। मुझे तो कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ दिखाई नहीं देता, तो वो करोड़ों रुपया कहाँ जाता है? ठीक है,
तो इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो जगह मेरे बाप दादा की है वो उसको मैं हर कीमत पर हासिल करूंगा। ये हमारे बाप दादों की जगह है, ये भगवान बुद्ध की है, हम भगवान बुद्ध की संतान है। तो हमारे बाप दादा की जगह पे कोई दूसरा बैठा है, इंग्लिश में कहते हैं बाई हुक और क्रोक, हम उसको वहां से निकालेंगे। সবশেষে হিন্দুত্ববাদীদের কাছে যদি প্রশ্ন রাখি যে তারা কি অস্বীকার করতে পারবে যে বুদ্ধের মৃত্যুর পর দল অনুগামীকে লোভ দেখিয়ে, হত্যার ভয় দেখিয়ে মূল বুদ্ধ সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে নিজেদের শিবিরে নেয়নি? এই বুদ্ধ অনুগামীরা মহাজনী আখ্যা নিয়ে নীল সরস্বতী, তারা, ব্রজবারাহী, মারিচি, বুদ্ধ গণেশ বা জাপানের কাঙ্গিতেন, তিব্বতের তগয়োগি ওয়ারপো নামে পূজিত হন না। অথচ হীনযানী নামে সাচ্চা বৌদ্ধরা আজ সংখ্যায় কম হলেও বুদ্ধদেবের সেই বাণী মেনে চলেন, যেখানে বুদ্ধদেব ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, বেদ, বেদান্ত অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির গ্রাসে আজ ভারত আক্রান্ত। এই সংকট থেকে মুক্তি দিতে কি মহামানব বুদ্ধ আবার ধরায় আসবেন? অনুষ্ঠানটি কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে লাইক দেবেন, অন্যকে শেয়ার করবেন, আর যদি খারাপ লাগে তাহলে নিশ্চয়ই তীব্র সমালোচনা করবেন। তবে হ্যাঁ, প্রমাণসহ। দিগদর্শন, রংহীন সংবাদ ও অজানা তথ্য জানতে দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।